Good morning, all of you. Now, today I am going to discuss about enzyme. That enzyme is protease. Let's start proteases. First, introduction part. Belonging to the class that hydrolyze the peptide bond. So, protease, mixture of peptidase and proteinases are enzymes that perform the hydrolysis of peptide bonds. Peptide bonds links the amino acid to give the final structure of a protein. Proteinases are extracellular and peptidases are endocellular. Second most important enzymes produced on a large scale after amylase. तो एमाइलेज जो है कि लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे है वो है प्रोटीजेस। तो ये जो प्रोटीन्स है इसको हम कन्वर्ट करते हैं पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में। ये पॉलीपेप्टाइड्स और एमिनो एसिड में जो कन्वर्ट होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ इंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम की वजह से होते हैं। तो दिस एंजाइम प्रोटीएजेस इज आल्सो नोन एज प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। It involved in degradation of proteins. So it is called proteases or proteolytic enzymes. तो प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इंडोपेप्टाइडेस जो एंजाइम्स होता है वो इन्वॉल्व होता है, और पॉलीपेप्टाइड से एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सोपेप्टाइडेस एंजाइम। जो एक्सोपेप्टाइडेस एंजाइम है वो एक्ट नियर ए टर्मिनल ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और जो इंडोपेप्टाइडेस है दैट एक्ट इंटरनली इन पॉलीपेप्टाइड चेन। Now here you can see in this slide hydrolysis of peptide bond. After hydrolysis converted into peptide and amino acid, then deaminations, formation of ammonia, then anions react with anions, formation of ammonium and glycolysis or citric acid cycle. From ammonia urea is produced. This is a protein catabolism. नाउ क्लासिफिकेशन की बात करें तो देयर आर some classification on base of pH, or we can say on the basis of their mechanisms. So here we can see classification based on the residue in the catalytic site. We can say on the basis of their mechanism of action. Serine proteases, threonine proteases, aspartate protease, cysteine, glutamatic acid protease, metalloproteases. Now next है classification based on the pH in which the proteases are active. तो on basis of pH these are acid proteases, neutral proteases and basic alkaline proteases. Alkaline serine proteases या acid proteases or neutral proteases. See here, first one is alkaline serine proteases. So pH of the production medium is kept at 7 for satisfactory results and have a serine at the active site. Optimum temperatures
is maintained 30 to 40 degrees Celsius. Important producers are B. Licheniformis, B. Amyloliquefaciens, B. Firmus, B. Megatheriums, Streptomyces griseus, S. fredi, S. rectus, and fungi like A. niger मतलब Aspergillus niger, A. origi मतलब Aspergillus origi, A. flavus. Now come on next slide. Enzymes used in detergents are chiefly proteases from bacillus strains. Peptidases. Best known proteases are Septalis Carlsberg from B. licheniformis and Septalicin ppn and Septalicin novo from B. amyloliquefaciens. These enzymes are not inhibited by EDTA but inhibited by DFP, diisopropyl fluorophosphate. Now, proteases for use in detergent industries: stability at high temperature, stability in alkaline range, stability in association with chelating agents and perborates, but shelf life is affected in presence of surface active agents. Now, screening. Because the enzymes should be stable in alkaline condition, screening for better producers is done by using highly alkaline media. It was found that B. licheniformis and B. septalis showed growth is the range of pH 6 to 7, while new strains were found to grow even in pH 10 to 11. Genetic manipulation can also be carried out. Now, fermentation process. Here we are going to discuss about the production process. So there are two types methods. First one is submerged fermentation and second one is solid state fermentation. तो fermentation process है क्या, किस तरह से इसमें करते हैं? You can see cultures are stored in a lyophilized state or under liquid nitrogen. lyophilized state या लिक्विड नाइट्रोजन में कल्चर्स को स्टोर किया जाता है. Now, initial cultures are carried out in a shaken flask and small fermentation at 30 to 37 degrees Celsius. Fed batch culture is generally used to keep down the concentration of ammonium ions and amino acid as they may repress protease productions. High oxygen partial pressure is generally necessary for optimal protease titers. Time spent for fermentation is 48 to 78 hours depending upon the organism. Proteases must be converted in a particular form before they are added to detergents. To prepare a stable and encapsulated product, a wet paste of enzymes is melted at 50 to 70 degrees Celsius with hydrophobic substances such as polyethylene glycol and then converted into tiny particles. Now, second one is neutral proteases. They are relatively unstable and calcium, sodium and chloride must be added for maximal stability. Okay, to make more stable we have to add calcium and chloride. Not stable at higher temperature. Producing organisms are Bacillus subtilis and Bacillus megatheriums, etc. They are quickly inactivated by alkaline proteases. Now, third one is acid proteases. Similar to mammalian pepsin, it consists of rennin-like proteases from fungi which are chiefly used in the cheese production. Okay, they are used in medicines, in digestion of soy protein or for soya sauce production and to break down wheat gluten in the baking industries. Now applications की बात करें तो here given
some brief application टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में टू इम्प्रूव प्रोटीनियस साइजिंग, सिल्क इंडस्ट्रीज में टू लिबरेट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम नेचुरली अकरिंग प्रोटीनियस मटेरियल इन विच दे आर एम्बेडेड, टेंडराइजिंग ऑफ मीट used in detergent and food industries. So these are the applications. Now you can also make some other subheadings such as sources of types. कौन कौन से सोर्सेस है जहाँ से हम ये प्रोड्यूस को गेन करते हैं, रिसीव करते हैं. तो प्लांट प्रोटीजेज हैं जैसे पेपेन है. एनिमल सोर्सेज में जैसे पेंक्रियाटिक है, पेप्सिन है, ट्रैप्सिन है, रेनिन है. माइक्रोबियल प्रोटीज मीन्स माइक्रोब से जो हम ऑब्टेन करते हैं सच एज अ बैक्टीरिया, फंगल, वायरल, दीज आर ओके. तो हम लोगों ने प्रोटीज के बारे में इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा. जैसे इट इज़ आल्सो नोन एज ए प्रोटीयोलिटिक एंजाइम्स, और इसके क्लासिफिकेशन को देखा. ठीक है, पीएच बेसिस पे और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, मोड ऑफ एक्शन के आधार पे हमने देखा. ठीक है, और प्रोडक्शन प्रोसेस में फर्मेंटेशन मेथड एक जनरल वे में हमने समझा कि किस तरह से हम प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीज एंजाइम को विथ दिस फर्मेंटेशन मेथड्स. इसी में कहीं कहीं जहाँ टाइप्स दिए हुए हैं उसमें हमने कहीं कहीं पे देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं जिनसे हम इनको रिसीव करते हैं गिवन देयर, जैसे बैसिलस सबटाइलिस था, एस्परजिलस फ्लेविसिस था. ठीक है, तो यू कैन राइट अ सेपरेट हेडिंग प्रोडक्शन. In this production you write selection of microorganisms. तो microorganism means selection of fungi और बैक्टीरिया. एग्जाम्पल्स इसमें लिख सकते हैं जैसे अभी हमने बताया बैसिलस सबटाइलिस है, एस्परगिलस है, फिर एस्परगिलस फ्लेविसिस है, फिर बैसिलस एमाइलो लिक्विफेशियंस है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स है. और स्ट्रेन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम म्यूटेशंस का यूज़ करते हैं, म्यूटेशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं. तो दिस कैन डन बाय एक्सरे और यूवी रेज. नाउ यदि फार्मूलेशन की बात करें तो फार्मूलेशन में हमें क्या क्या चाहिए, तो ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर. तो हमने जैसे बैसिलस NRRLB3411 when grown on a grain medium. ग्रेन मतलब अनाज सीरियल्स के ऊपर जब हम इसको ग्रो करवाते हैं तो न्यूट्रल प्रोटीएस एंड व्हेन कल्चर्स ऑन ए फिश मील एंड अदर इंजुसीरियलोस मीडियम्स एल्कलिन प्रोटीएस यूज़ करते हैं. इसके अलावा पेप्टोन है, कैसीन है, इंड्यूस प्रोटीएस है, ये यूज़ करते हैं. कार्बन सोर्सेस की बात करें तो जैसे बार्ले है, मोलासेस है, स्टार्च है, इनको यूज़ करते हैं. कॉर्न है, वीट है. प्रोटीन की बात करें तो मिल्स ऑफ सोयाबीन है, कॉटन सीड है, पीनट है. तो दीज आर द प्रोटीन सोर्सेस. कार्बन सोर्सेस, तो दीज आर फॉर्मुलेशंस ऑफ मीडियम्स. इनको लेकर के हम एक मीडियम कल्चर मीडिया को तैयार करते हैं. Now we discussed here about the production. तो here production process जो हम फर्मेंटेशन यूज़ कर रहे हैं, एक थोड़ा सा इसमें यदि हम डिटेल जाते हैं तो जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में वो 2 टाइप्स के हैं. एक है सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन, दूसरा है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन. ये जो सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन है इसमें हम बैक्टीरिया को लेते हैं, और जो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है इसमें हम फंगाई को लेते हैं. तो सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन में क्या होता है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक क्लोज्ड वेसल में लेते हैं.
ठीक है। वहाँ पे एक ब्रॉथ तैयार करते हैं। ब्रॉथ मीन्स मतलब कल्चर मीडिया, जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स है, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स, दे रिलीज द डिजायर्ड एंजाइम्स इन दैट सॉल्यूशन। ओके, यदि सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व्स द कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स ऑन अ सॉलिड सबस्टेट सच एज ग्रेन्स, wheat bran, sugar beet, pulp, wheat and corn flour। ठीक है, इन मतलब ये जो हैं एज अ सबस्टेट हैं, इनके ऊपर हम क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं। ठीक है, नाउ कुछ फैक्टर्स हैं जो फर्मेंटेशन को अफेक्ट करते हैं। ये हो सकते हैं टेम्परेचर, पीएच, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ मीडियम, शेयर रेट और टाइम और टेम्परेचर भी फैक्टर्स हैं जिससे जो कि फर्मेंटेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। रिकवरी की बात करें मीन्स जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करा लिया, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करा लिया, तब हमें फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ता है लास्ट स्टेज में, तो जिसे हम रिकवरी हेडिंग के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो aqueous पोर्शन इज़ कंसनट्रेटेड बाय इवेपोरेशंस एट ए रिड्यूस्ड प्रेशर। जो हमारे पास सॉल्यूशन मिला जिसमें एंजाइम्स है, उसका हमने कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट बनाया बाय इवेपोरेशन मेथड से प्रेशर को रिड्यूस करके इवेपोरेट करवाया, वो कंसनट्रेटेड बन गया। अल्टरनेट रिकवरी प्रोसीजर्स, द प्रोटीज कैन बी प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम aqueous ऑफ कोल्ड एसीटोन, इथेनॉल और आइसोप्रोपोल, एमोनियम सल्फेट्स एट्सेट्रा। प्रेसिपिटेशन मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। फिर उसको हम ड्राई करते हैं बाय यूजिंग स्प्रे ड्रायर और वैक्यूम। ओके, एप्लीकेशन में यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसके अलावा भी हैं, जैसे डेयरी इंडस्ट्रीज़ में है इन चीज़ प्रिपरेशन, बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में है, सोया सॉस प्रोडक्शन में है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में है, फिर है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एस्पार्टोम है, लेदर इंडस्ट्रीज़ है एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ है। तो दीज आर द एप्लीकेशन एंड नाउ ये था अबाउट प्रोटीज एंजाइम के बारे में। तो आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।